Hello and welcome back to my YouTube channel. So as you already know that we are currently proceeding with the topic of electrostatics, ठीक है. और हमने electrostatics का first part था in which we studied about the charges, electric field and the Gauss theorem. We had completed that topic. Okay. Now we are on the second topic which involves the study of electrostatic potential along with the capacitance. हमने कल क्या किया था? We were able to study the electrostatic potential, but उसका थोड़ा सा टॉपिक बच रहा था, उसके दो टॉपिक्स बच रहे थे. We will be completing those two topics and after that we will be moving to the topic of capacitance. ठीक है. सो एज सून एज द टॉपिक ऑफ कैपेसिटेंस विल बी डन, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा वाइंड अप हो जाएगा. ठीक है. और जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं उनके लिए बस एक यही इन्फॉर्मेशन कहूंगा कि आप घबराइए मत. तो एज सून एज आपका टॉपिक कवर हो जाएंगे विल बी मूविंग विद द एमसीक्यू सीरीज. ओके. सो दैट्स अ सेपरेट इशू. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स जस्ट मूव टू द टॉपिक of the capacitance. But as I already mentioned before we start with the capacitance, आपके पास यहाँ पे एक टॉपिक बच रहा है जो हमें करना है from the topic of potential. Okay. And that topic is electrostatics of conductors. So as you can see, I have already written that this is a very important topic. आपको ये बात समझनी पड़ेगी. This is a very very important topic. I mean, I cannot emphasize on the importance of this topic. ठीक है, my words cannot emphasize on the importance of this topic, but you have to understand me. You have to believe in me कि हम आपको जब मैं कह रहा हूँ कि this is a very important topic regarding the electrostatics and conductors. Okay, but the question arises why this topic is so important. No, so let me just answer that thing. ये टॉपिक आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज दिस टॉपिक विल नॉट ओनली हेल्प यू इन सॉल्विंग द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बट ऑल्सो द कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स, assertion and reason type of questions which will be asked from you from the topic from this topic of electrostatic potential and capacitance. Okay, so इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए लेट्स जस्ट मूव टू द फर्स्ट पॉइंट जो हम इसमें करने वाले हैं. रिमेंबर वन थिंग, दिस टॉपिक इज काइंड ऑफ अ कंसेप्चुअल टॉपिक. ओके, आपको ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, आपको उसको पढ़ना होता है, बट इट्स मोर देन दैट. ठीक है, इट्स मोर देन दैट बिकॉज आपको ये बात समझनी पड़ेगी. इसके वर्ड्स में जो लाइक वेटेज है उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है, अगर आपको वो चीजें याद है ओनली देन यू विल बी एबल टू आंसर द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम, assertion and reason or any other type of question that will be asked from this chapter. Okay, so let's just move to the topic now. Since we are dealing with the electrostatic of the conductor, so there are some points about electrostatic for the conductors which you should remember. Okay, the first point we should remember is number one. Let me just change the color of the pen. The first point which you should remember about this topic is number one, that in electrostatic equilibrium, that in electrostatic equilibrium the electric field is zero everywhere inside the conductor. क्या मतलब वो इस बात का? इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टर. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. दिस विल हेल्प यू इन सॉल्विंग द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. इन फैक्ट दिस हेल्प्स यू. दिस इज द रीजन व्हाई व्हेन वी टॉक अबाउट स्फेरिकल शेल, हम स्फेरिकल कंडक्टर की बात करते हैं. सो व्हेन द कंडक्टर इज बीइंग यूज्ड तो आपको समझना पड़ेगा द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इनसाइड द कंडक्टर विल बी इक्वल टू जीरो. This is the first point. Okay, let's just move to the second point. Let's just move to the second point. जिसको हम स्टडी करेंगे. ठीक है, that the electric field just outside a charged conductor is perpendicular to the surface of conductor at every point. ओके, अब आपको समझिए, इसमें आपको बात समझनी पड़ेगी. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आपको समझिए इस बात का मतलब क्या है. फर्स्ट लेट्स जस्ट डिस्कस व्हाट वी हैव रिटन, दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर. पेपर में क्वेश्चन बोलेगा पैरेलल, एट एन एंगल, tangentially, जो भी आपको वर्ड्स बोले, you must remember this thing that the electric field just outside the conductor is perpendicular, not tangential. Remember this thing. वो क्या है? That the electric field outside the conductor is just perpendicular. ठीक है, so let's just understand this point. ये चीज ऐसे क्यों होती है? ठीक है, so let us suppose this is a conductor which has been given to you. This is the conductor which has been given to you. अब मैंने क्या किया, आपको मन किया या मेरा मन किया, आपका मन किया, we decided that we wanted to give some kind of a charge to this conductor.
we wanted to give some kind of a charge to this conductor. So in order to give this charge conductor a charge, what we did, we supplied this conductor with some charges. Okay, so what happens when we supply this conductor to charges? ठीक है, आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा. You must remember this thing. What happens when we supply this conductor with some charges? ठीक है, so first thing which will happen is when we supply the conductor some kind of charges, आपको समझना पड़ेगा, the charges will arrange themselves on the surface of conductor. Surface of conductor. पहली चीज तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये कि the moment you supply some charges to it, those charges will arrange themselves on the surface of the conductor. Will arrange themselves on the surface of the conductor. ठीक है. दूसरी बात जिसका आपको ध्यान रखना है, that is this arrangement will continue. ये कब तक रहेगा? ठीक है, ठीक है ना. जब चार्जेस अपने आप को अरेंज कर रहे हैं, आपको ये बात समझना पड़ेगा, तब तक चार्जेस फ्लो कर रहे हैं. जब तक चार्जेस खुद को अरेंज कर रहे हैं तभी तक चार्जेस फ्लो कर रहे हैं ना. ठीक है, let me repeat myself. The charges will flow over the surface of the conductor till they have not arranged themselves. The moment they arrange themselves, the flow of charges over the conductor will stop. ठीक है, ये भी लिख देते हैं. The flow of charges on the surface of conductor will stop. कब रुकेंगे? Will stop once the charges have arranged themselves. Have arranged themselves on surface of conductor. ठीक है, ये बात क्लियर होगी. So let's just say we give this conductor a positive charge and this is where the positive charges have arranged over the surface of the conductor. मतलब पूरे conductor पे positive charges हैं. We are just taking that simple section of this conductor, which is this section. We are taking this section of this conductor. Okay, this is the section of the conductor which we are dealing with right now. ठीक है, अब हमने क्या किया, कर दिया इन कंडक्टर्स पे ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के चार्जेस को, हमने क्या किया, चार्जेस को अरेंज किया एंड वंस द चार्जेस अरेंज देमसेल्फ दे स्टॉप, दे फ्लो ओवर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. ठीक है, so this implies that now this equation, this lines implies that इस ये जब आपका चार्जेस का फ्लो आपका क्या हुआ, जब आपका चार्जेस का फ्लो रुक गया due to the arrangement of the charge surfaces, due to the arrangement of the charges over the surface of the conductor, इस वजह से क्या होता है, this implies that the component of electric field, what does this imply? This implies that the component of electric field, this implies that the component of electric field along the tangent to the surface of conductor must be 0. क्लियर हुई इस बात? द मोमेंट आपके चार्जेस का फ्लो रुक गया, उसी दौरान आपको पता लगेगा, द मोमेंट द फ्लो ऑफ चार्जेस स्टॉप ओवर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, दिस इंप्लाइज दैट द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रिमेंबर दिस इन द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द टेंजेंट टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर मस्ट बी 0. इस चीज का आपको ध्यान रखना है. वो क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, अलोंग द टेंजेंट 0 होगी. इस बात का मतलब क्या, व्हाट डज दिस मीन? इस बात का मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दिस इंप्लाइज दैट आपकी जो e cos थीटा की वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए. अगर आपका उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट अगर आपका 0 है, दैट मींस e cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0. ठीक है, नाउ रिमेंबर वन थिंग, एज E cannot be equal to 0 because we have supplied a charge, only tangential component is 0. No, so that means ऐसा तो नहीं है कि tangential component 0 हो तो सब कुछ 0 होगा, नहीं, only the tangential component is 0 and according to this equation the E cannot be equal to 0. E cannot be equal to 0. This implies that only cos theta will be equal to 0. This implies that theta must be equal to pi by 2. Now before we proceed further, let's just try and understand what does this theta represents. ठीक है, थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हम उसको थोड़ा समझ लेते हैं. हियर थीटा जो है, थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा रिप्रेजेंट्स द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
and the tangent to the surface and the tangent to the surface. ठीक है. Now since electric field cannot be equal to zero, आपकी electric field की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, only tangential component of the electric field is zero. This implies that आपका थीटा की वैल्यू जो होनी चाहिए must be equal to pi by 2. ठीक है, अब ये बात आपकी क्लियर होगी. दैट मींस थीटा मस्ट बी इक्वल टू पाई बाय 2 होना चाहिए आपके पास. तो ये सिचुएशन आपके पास निकल के आ जाती है. ठीक है. अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आती है. अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है दैट मींस द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन. ठीक है. बट वहीं पे अगर आपके पास लेट अस सपोज द नेगेटिव चार्ज वाज अप्लाइड टू इट, इफ लेट्स जस्ट से दिस वाज नेगेटिव साइन, अगेन द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नॉर्मल टू द सरफेस, बट द डायरेक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन. This will be the direction of the electric field. Okay, I hope ये बात आपके लिए क्लियर होगी. ठीक है. Let's just move to the third point, which is another crucial point. That is the net charge on the interior of the conductor is zero. That the net charge on the interior of conductor is equal to zero. ये बात का आपको ध्यान रखना है. तो नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर विल बी जीरो. क्या मतलब है इस बात का कि नेट चार्ज इनसाइड द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज जीरो. कितनी वैल्यू है उसकी? नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज इक्वल टू जीरो. क्या बात है इस बात का? मतलब क्या है इस बात का? देखिए, वी नो दैट, हमें इस बात का पता है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, ठीक है, क्या है कि क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds vector will be equal to q enclosed over epsilon naught. Now since E inside is equal to 0, this implies that Q enclosed will be equal to 0. ठीक है. इसलिए हम कह रहे हैं कि in the interior of the conductor the net charge is equal to 0. अब आपके पास क्वेश्चन आपके दिमाग में ये उठता होगा कि why I am solving this kind of derivations for you, कि मैं आपको क्यों सॉल्व कर रहा हूँ. ठीक है. To answer your that query, let me just tell you one thing, that this question can be asked you in the form of assertion and the reason. In assertion, he will give you that the net charge on the interior of the conductor is 0. So what will be the reason for this thing? Why the net charge inside the conductor is equal to 0? So the net charge inside the conductor will be 0 can be explained with the help of Gauss theorem. Because the Gauss theorem states that if the total electric field inside is something it's inside the conductor is 0, that means the charge enclosed by the conductor must be equal to 0. ठीक है. तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है. The charge enclosed must be equal to 0. Now let's just move to the next topic. The next point. That is the electrostatic potential. That the electrostatic potential is constant throughout the volume of conductor and its value is same as on so sorry, let me just write this thing once again. ठीक है. हम क्या लिख रहे हैं कि the electrostatic potential is constant throughout the volume of the conductor. इस चीज को आपको समझो कि मतलब क्या कहना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल is constant throughout the volume of the conductor has same value on its surface. See, this is a very important point. आपको ये बात समझनी पड़ेगी. You cannot, आप इसकी importance को समझ नहीं सकते. I cannot emphasize on the importance of this point, because this point will help you to solve so many questions, so many numericals that you cannot fathom that thing. Okay, your mind cannot fathom that thing. Okay, तो आपको इसको समझिए. क्या कहना चाहता है? ये कह रहा है कि the electrostatic potential is constant throughout the volume of the conductor. मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर के अंदर जो आपका पोटेंशियल है वो कांस्टेंट होगा एट एवरी पॉइंट. ठीक है. और उसकी वैल्यू कितनी होगी? एंड द वैल्यू विल बी सेम एज द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल सरफेस. मतलब ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि लेट जस्ट से दिस इज सम काइंड ऑफ अ कंडक्टर व्हिच हैज बीन गिवन टू यू, एंड इफ दिस कंडक्टर हैज अ वैल्यू v ऑन द सरफेस,
has the value of potential as V on the surface. So according to this point, this value of V which is present on the surface, the electricity potential which is present on the surface of the conductor, this conductor, so the question can be asked of you कि आपको ये क्वेश्चन दे देगा, if V is the potential on the surface of the conductor, then what will be the value of the potential inside the conductor? So the options will be like V will be equal to 0, V, let's just say V inside will be equal to 0, V inside will be less than V, V inside will be equal to V, V inside should be greater than V. So the answer to this question will be V inside will be equal to V, V inside will be equal to V. इस चीज को हम समझते हैं किस तरह से ये चीज काम करती है, ठीक है. सो लेट्स जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड द फर्स्ट, वी ट्राई एंड अंडरस्टैंड द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस whatever we have written over here, that is the electric potential is constant throughout the volume of the conductor. पहले हम इस बात को समझते हैं कि हमने ऐसा क्यों लिखा कि the electric potential is constant throughout the volume of the conductor. देखिए हम इसको समझते हैं, इसको हमने क्यों लिखा, ठीक है. लेट्स जस्ट से कि आपके पास एक रैंडमली एक कंडक्टर आपके पास गिवन है एंड वी हैव सप्लाइड सम काइंड ऑफ अ चार्ज ओवर टू दिस कंडक्टर. नाउ वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conductor is equal to 0. हमें ये बात पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conductor is 0. अब देखिए अगर हमें ये प्रूव करना है कि the electrostatic potential is constant throughout the volume of the conductor, is constant throughout the volume of the conductor, हम अगर इसको प्रूव करना चाहते हैं तो देखिए इसको प्रूव करने के दो तरीके हैं एंड आई होप आपको दोनों में से एक तरीका समझ आ जाए, ठीक है. देखिए लेट्स जस्ट से कि आपके पास दो चार्जेस गिवन है, a charge has been given to you and you are required, this is the surface over which we have supplied some charge and the electric field inside the conductor is equal to 0. So let's just say we have to move from point A to point B. Let us say we have to move from point A to point B. And we know that in order to move from point A to point B in some kind of electric field, we know that the work done is given by, that the work done, that is dW, is given by integral of E vector dot dl vector. हमें ये पता है, ये बात given है. Now since E vector is equal to 0 in this case, so this implies that work done will be equal to 0. इसका मतलब ये हुआ कि वर्क डन क्या होगा, 0 होगा व्हेन वी ट्राई टू मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इनसाइड द कंडक्टर. जब मुझे ए से लेके बी तक जाना है इनसाइड द कंडक्टर जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है, तो वो काम करने के लिए जो मुझे वर्क डन की रिक्वायरमेंट होगी वो कितनी होगी, 0. यानी कि कोई वर्क डन मुझे रिक्वायर नहीं होगा जब मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करूंगा. अगर ये इक्वेशन मेरे पास आ रही है एंड वी आर ऑल्सो अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट क्यू डेल्टा वी इज इक्वल टू 0, is equal to work done, sorry, and in this case since work done is equal to 0, we get that q delta v is equal to 0. ठीक है. अब ये इक्वेशन सेटिस्फाई कब होगी, ये इक्वेशन सेटिस्फाई कब होगी, इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा v विल बी इक्वल टू 0, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू 0. और चेंज इन पोटेंशियल अगर 0 है, दिस इंप्लाइज दैट, इस इक्वेशन से आपको क्या पता लग रहा है, दैट VA माइनस VB इज इक्वल टू 0. इस बात से ये पता लग रहा है कि VA इज इक्वल टू VB. इससे आपको ये पता लगा कि द पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर इज इक्वल टू 0, सॉरी, पोटेंशियल ऑन द कंडक्टर इज इक्वल एट एवरी पॉइंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0. यहाँ यही चीज आप एक और तरीके से प्रूव कर सकते हैं. व्हाट इज दैट मेथड? वी नो दैट E vector is equal to minus of dV over dr. Now since E vector is equal to 0 inside the conductor, this implies that dV over dr will be equal to 0. और ये इक्वेशन कब सेटिस्फाई होगी, ये इक्वेशन कब सेटिस्फाई होगी? सो दिस इक्वेशन जो है ये इंप्लाइज कर रही है दैट E vector, since this equation implies that V is equal to constant, because constant का ही तो डिफरेंशियल 0 होता है. ठीक है, ये बात क्लियर होगी. अब आपके पास क्वेश्चन उठता है, हमने जो इसका सेकंड पार्ट लिखा है. नाउ लेट्स जस्ट मूव टू द सेकंड पार्ट व्हिच सेज दैट द पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर विल बी सेम एज दैट प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. ठीक है, हम इस बात को भी समझ लेते हैं. सिंस इन दिस पॉइंट हमने यहां लिखा था द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द टेंजेंट इज इक्वल टू 0. टेंजेंट के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट नहीं होता है. इसका मतलब क्या हुआ, सिंस देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट अक्रॉस द टेंजेंट टू द सरफेस, इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर मुझे सरफेस के ऊपर मूव करना है, इफ आई हैव टू मूव ओवर द सरफेस, अगर फ्रॉम द सरफेस, लेट्स से इफ यू हैव टू मूव फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ द सरफेस, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ द सरफेस इफ आई हैव टू मूव टू दिस पॉइंट. ठीक है, सिंस
टेंजेंशियल कंपोनेंट इज जीरो, इसका मतलब कोई वर्क डन रिक्वायर्ड कितना होगा, जीरो होगा, कोई वर्क डन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट अक्रॉस टेंजेंशियल एक्सिस इज इक्वल टू जीरो। तो अगर वो चीज जीरो है, इस बात का मतलब ये हुआ कि द वर्क डन विल बी इक्वल टू जीरो। अगर वर्क डन इज इक्वल टू जीरो है, इस बात का मतलब ये हो कि पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट होगी, एंड इफ द पोटेंशियल इज कांस्टेंट, सो दिस प्रूव्स दैट द पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। ठीक है, लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द फिफ्थ पॉइंट। ठीक है, that the value of electric field at the surface of a charged conductor is equal to sigma over epsilon naught n cap. Okay, here आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा what does the value of n cap represent. So remember this thing, that the n cap represents the direction in which the electric field will be pointing. So if sigma is greater than 0, this implies that electric field will be outside. मतलब let's just say if this is our conductor, then the electric field will be like this, and if sigma is less than 0, this implies that electric field will be inside. आउटसाइड एंड इनसाइड इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीजें क्लियर होगी। एंड फाइनली लेट्स जस्ट मूव टू द फाइनल पॉइंट व्हिच स्टेट्स दैट surface density of a charge is different at different points of an irregularly. I'm so sorry about my handwriting. I really apologize for my handwriting, but I don't know. I'm trying my level best कि मैं अच्छी handwriting लिखूं, but मैं समझ नहीं पाता क्यों मेरे हाथ काम नहीं करते. Of an irregularly shaped conductor. ठीक है, कि आपको ये समझना पड़ेगा कि सरफेस डेंसिटी जो होती है इज डिफरेंट होती है एट डिफरेंट पॉइंट्स फॉर एन इरेगुलरली शेप्ड कंडक्टर। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब आपको ये समझना पड़ेगा व्हाई इज दिस द केस। अगर आपको इफ दिस इज द असर्शन व्हिच हैज बीन गिवन टू यू, इफ इन द असर्शन ही सेज दैट द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफरेंट फॉर एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द कंडक्टर, अगर वो आपसे पूछे तो ऐसा क्यों होगा। ठीक है, अगर वो आपसे पूछे कि ऐसा क्यों है, ठीक है, तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए होता है। देखिए, पहली चीज तो आपको ये समझनी पड़ेगी, वी शुड रिमेंबर दिस थिंग, दैट सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए। ठीक है, इफ we have an irregularly shaped conductor, आपको एक irregularly shaped conductor है, then the value of A will be different at different point, because let's just say value of A will, because area will be different, because dimension of the conductor will be different, so sigma will be different at different points of the conductor. Further, if conductor has positive charge in some part and negative charge in the other part, due to the value of the charges, that is plus and negative, the value of the sigma will be different in different parts of the conductor. ठीक है, आई होप आपको इतनी सी बातें समझ आ चुकी होंगी, बिकॉज दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इनके बेसिस पे दिस आर द पॉइंट्स व्हिच विल हेल्प यू इन गेनिंग एन एक्स्ट्रा एज ओवर द योर कंपटीशन इन योर नीट एग्जामिनेशन, बिकॉज यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्चुअल क्वेश्चंस वेरी वेल, you will be able to understand the numerical problems very well if you know these points. ठीक है, so let's just move to the final point of the electrostatics, that is electrostatic shielding. ठीक है, electrostatic shielding. ठीक है, so it is nothing but a phenomenon, this is nothing but a phenomenon of protecting a certain region of space from external electric field.
ठीक है, ये चीज होगी। अब देखिए काम कैसे करता है, व्हाट डज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग मींस एंड हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अ कंडक्टर, हाउ वी कैन प्रोटेक्ट सम इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, हम उससे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सी आपसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग जो है वो किस फिनोमेना पे बेस्ड है। assertion can be given to you, a conceptual question can be given to you, and they can ask you to explain on which phenomenon the process of electrostatic shielding is on is based. Okay, so इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा, we know that inside a conductor the electric field is equal to zero. इस phenomenon पे based है। मतलब हम क्या करते हैं, if we want to let's just say if we want to protect this body A from electric field, तो हम क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा, मैं इसको एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर रख दूंगा, and since the electric field inside the conductor is equal to zero, तो electric field lines will never cross inside the conductor and this object will be protected from the electric field. अब इसमें ना एक एडेड एडवांटेज होता है, ठीक है, आप पहले इसको समझ लेते हैं। दिस काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉल्ड फैराडे केजेस, इनको आप बोलते हो फैराडे केजेस बोलते हो, ठीक है, फैराडे केजेस आप इनको बोलते हो। एंड फर्दर इसके एक एडेड एडवांटेज होते हैं कि इसमें अर्थिंग करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, यू कैन डायरेक्टली प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वजह से आप उसको डायरेक्टली प्रोटेक्ट कर सकते हो। एंड द फिनोमेनन ऑन व्हिच इट इज बेस्ड इज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज इक्वल टू जीरो। ये चीज आपके इसके ऊपर बेस्ड है एंड दिस विद दिस आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होता है वो कवर हो जाता है, ठीक है। नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द मेन टॉपिक ऑफ टुडेस डिस्कशन, दैट इज कैपेसिटेंस, ठीक है। नाउ before we start with capacitance, let me just tell you one thing, ठीक है। कैपेसिटेंस के शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड टॉपिक। कैपेसिटेंस जो है वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड टॉपिक होता है, किसी भी बच्चे से आप जाके पूछोगे तो मतलब आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि इसमें ना थोड़ा ऐसा होता है कि बच्चों को ना प्रॉब्लम आती है विद द प्रोसेस ऑफ कैपेसिटेंस के बारे में समझने में, बिकॉज उन्होंने ना चैप्टर को ढंग से पढ़ा नहीं होता है, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस इज वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड टॉपिक। आई थिंक कैपेसिटेंस जो होती है वो होती क्या है, कैपेसिटेंस काम कैसे करती है, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द कैपेसिटेंस डिपेंड्स, ठीक है। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द कैपेसिटेंस एंड वी विल स्टार्ट एंड एज वी ऑलरेडी नो कि हम कैपेसिटेंस का हम कोई भी टॉपिक शुरू करते हैं वी स्टार्ट विद दिस डेफिनेशन, बिकॉज एज आई ऑलरेडी मेंशन दिस थिंग टू यू कि अगर आपको डेफिनेशन आती है, डेफिनेशन इज द कोर, कि अगर आपको चैप्टर को सॉल्व करना है, इफ वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द बेसिक थिंग्स आर वर्किंग, हाउ टू टैकल सम काइंड ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, उसमें डेफिनेशंस बहुत हेल्प करती हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन अगर हम लिखें, ठीक है, सो कैपेसिटेंस को अगर हम बोले, हम if we want to define a capacitor, so we define the capacitor, let's just say before we go for the capacitor, ठीक है, let's just go with the capacitance, ठीक है। capacitance is the ability of a conductor to store charge और एनर्जी। देखिए पहली प्रॉब्लम जो बच्चों को फेस करते हैं वो कैपेसिटेंस के डेफिनेशन को उसको डिफाइन नहीं कर पाते, बिकॉज दे उनके दिमाग में हमेशा ये बैठा होता है, बिकॉज दे ऑलवेज थिंक इन वन डायमेंशन, दे ऑलवेज से दैट द कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू स्टोर चार्ज, ठीक है। रिमेंबर वन थिंग, वो चार्ज तो स्टोर करता है बट इट ऑल्सो स्टोर्स एनर्जी। So capacitance is the ability of the body to ability of a conductor to store a charge or energy, ठीक है। एंड रिमेंबर इट इज एन एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर, आप यहाँ पे नॉन कंडक्टर्स वगैरह नहीं रखते, कंडक्टर की एबिलिटी होती है, ठीक है, सेमीकंडक्टर भी नहीं होता। इट इज द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज और एनर्जी, इसको आप क्या बोलते हो, कैपेसिटेंस बोलते हो। एंड वी ऑफन रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है, हम हमेशा इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है, कि कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होती है, ठीक है, द कैपेसिटेंस को होता है, उसको अगर हम मैथमेटिकली डिफाइन करने की कोशिश करें, इन ऑर्डर फॉर अस टू डिफाइन द कैपेसिटेंस इन मैथमेटिकल टर्म्स, वी ऑलवेज से दैट द C is equal to Q over V. C is equal to Q over V. अब आप समझोगे कि why I am saying that capacitance is one of the most misunderstood topic, ठीक है। अब आप इस बात को समझोगे कि जब मैं कह रहा हूं कि कैपेसिटेंस जो है वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड टॉपिक है, वो क्यों है, आप समझिए। If we look at this equation in the first glance, if we look
एट दिस इक्वेशन द फर्स्ट ग्लांस, अगर हम इस इक्वेशन को पहली बार देखें तो हमें ये नजर आता है कि C इज इक्वल टू Q बाई V। तो पहला परसेप्शन आपके दिमाग में, एज आई एम सेइंग, कि आप इसमें वन डायमेंशन में सोचते हैं। वन डायमेंशन में सोचने मतलब डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, वन डायमेंशन इज अ फ्रेज मैं यूज कर रहा हूँ। आप एक पर्टिकुलर बड़ी मायोपिक विजन के साथ सोचते हो। यू ऑलवेज लुक एट दिस इक्वेशन इन वेरी मायोपिक विजन। ठीक है, आप किस तरह से देखते हो? अगर आपको पता है कि C इज इक्वल टू Q बाई V है, सो बच्चे इसको पढ़ेंगे नहीं, दे विल, अगर आपको ऑप्शन में देखेगा द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन Q चार्ज या V पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है। सो बिफोर वी लेट मी जस्ट बिफोर आई गिव यू माय पॉइंट्स, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ here Q, this represents the charge, and V, this represents the potential। ठीक है, now let me explain you why this is the most misunderstood topic, okay? So as I was saying कि हम क्या करते हैं, बड़ी myopic vision के साथ इसको देखते हैं। We always say that on the first glance we will say that the capacitance of a conductor depends upon the charge and potential। अगर हम पहली क्लास में देखें तो हमें ये नजर आता है कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर जो होती है वो डिपेंड करती है चार्ज और पोटेंशियल के ऊपर। दैट्स रॉन्ग, वो स्टेटमेंट गलत है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है इंपॉर्टेंट इसमें समझिए, दैट द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ कि कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर जो होती है इस इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट का मतलब है कि उन पर डिपेंड नहीं करेगी, इस इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V। मतलब कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर जो होती है वो Q और V के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। मैक्सिमम बच्चे क्या याद करके जाते हैं कि C इज इक्वल टू Q बाई V, दैट मींस कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर विल डिपेंड अपॉन चार्ज एंड पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करेगी। बट रिमेंबर द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V। ठीक है, इसमें लिखिए आगे, बट इट डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करेगी? अगर Q और V के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, इट डिपेंड्स ऑन shape and size of the conductor, shape and size of the conductor। ठीक है, this is the reason why I was saying this is one of the most misunderstood topic। अगर हम देखेंगे C is equal to Q by V, हम देखेंगे भैया नहीं ये Q और V के ऊपर डिपेंड कर रही है, बट इन एक्चुअलिटी, इन रियलिटी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q ओवर V। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट आप इसमें और लिखिए, डायमेंशंस पे डिपेंड कर रही है। फर्दर इसमें लिखेंगे, एक बात और लिखेंगे, दैट द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इसके अलावा किसके ऊपर इंडिपेंडेंट, किससे इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट ऑफ nature of material of the conductor। इस पे भी ध्यान रखिए, वो इस पे भी डिपेंड नहीं करती, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, इसके भी वो इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, बट इट डिपेंड्स ऑन कैपेसिटेंस, डिपेंड्स ऑन the nature of medium, depends on the nature of the medium। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम। ठीक है, तो आपको ध्यान रखिए, द कैपेसिटेंस ऑफ अ मटेरियल जो होती है, ऑफ अ कंडक्टर जो होती है, वो इंडिपेंडेंट होती है उसके चार्ज या पोटेंशियल के, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द मटेरियल, बट वो डिपेंड करती है ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम पर डिपेंड करती है, फर्दर शेप एंड साइज के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अब क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑफ यू कि व्हाई द कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V। इसको समझने के लिए लेट्स जस्ट से वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन, इस चीज को आप तभी समझ पाते हैं इफ यू कैन प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन Q एंड V। इफ वी ट्राई एंड प्लॉट द ग्राफ बिटवीन Q एंड V, लेट्स जस्ट से दिस इज V एंड दिस इज Q। ठीक है, एंड इफ यू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन V एंड Q, वी विल बी गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी।
ठीक है, बट वी विल बी गेटिंग इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली about why C is independent of Q and V. ठीक है, so if we plot a graph between V and Q, we find that what will we find? We will find that it is a straight line. हमें straight line देखने को मिलेगी। इस बात का मतलब क्या है कि whatever change which is happening in Q is happening in V. Only then we will be getting a straight line. Whatever changes which is happening in V will be happening in Q. जो चेंज आपका Q में आ रहा है, जो चेंज आपका Q में आ रहा है वही चेंज V में आ रहा है, और जो चेंज V में आ रहा है वही चेंज Q में आ रहा है, दैट इज द रीजन व्हाई वी आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन। सो दिस implies that Q change in Q and V, change in Q and V cancels each other, or word we should not use the word cancel, ठीक है, we should say that any change in Q, इससे आपको ये पता लगता है that any change in Q is represented by same change in V। इसी वजह से, क्योंकि जितना चेंज Q में आ रहा है उतना चेंज अगर V में आ रहा है, इसी वजह से C is independent of Q and V। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा। फर्दर लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड। ठीक है, अब आपको फर्दर में यहाँ पे कंटिन्यू करें। इसके यूनिट्स क्या होते हैं? फेरेड। Units are farad. What are the units of capacitance? Are farad. Okay. And what are the dimensions of capacitance? The dimensions of the capacitance are m minus 1, l minus 2, t4, a2। ठीक है, आई होप आपको कैपेसिटेंस वगैरह निकालने के लिए आती होंगी, कैपेसिटेंस के डायमेंशनल फॉर्मूलाज आपको निकालने आते होंगे। ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, दैट इज कैपेसिटी ऑफ एन isolated spherical conductor। capacity of an isolated spherical conductor की अगर हम बात करें, then the capacity of an isolated spherical conductor comes out to be C is equal to 4 pi epsilon naught r। इसमें हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे, we are not going to the derivation part of this टॉपिक, बिकॉज डेरिवेशन ऑफ दिस टॉपिक इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, अब हम इसमें एक बात समझते हैं, यहाँ पे जो आपके पास R है, R इज नथिंग बट द radius of the spherical conductor, and from here we find that C is proportional to R। this implies that the greater the value of R, जितना बड़ा आपका R की वैल्यू होगी, the more will be the capacitance of the spherical conductor, more will be the capacitance of spherical conductor। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे आपको मैं एक डायरेक्ट रिजल्ट बता देता हूँ, ताकि आपको जस्ट इन केस कभी पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आपको उसके बारे में सोचना ना पड़े। ठीक है, सो इसका जो सिंपल सा रिजल्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दैट इज दैट द कैपेसिटेंस ऑफ अ, ठीक है, जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि दैट द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ is equal to 711 माइक्रोफैरड। इस रिजल्ट को प्लीज आप डायरेक्टली ऐसे याद कर लीजिएगा, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू डिराइव दिस रिजल्ट। इसी रिजल्ट पे अगर हम आर की वैल्यू को रेडियस सब्स्टिट्यूट करते हैं 6.4 क्रॉस 10⁻6 मीटर्स, वी गेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ हैज 711 माइक्रोफैरड। ओके, नाउ लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। Let's just move to the next topic, that is capacitor and its principle। It is capacitor and its principle। ठीक है, so before we start with this topic of capacitor and its principle, let's just write the definition of a capacitor, about what is a capacitor। Okay, so let's just define what is a capacitor। So capacitor is defined as capacitor, please just remember this thing, capacitor is an arrangement, capacitor is an arrangement for storing large amounts of electric charge, and hence electric
energy in small space. ठीक है. What is a capacitor? Capacitor is an arrangement. Always remember this thing. Capacitor is an arrangement of storing large amounts of इसके large amounts of electric charge and hence electric energy in small space. ठीक है, ये बात क्लियर होगी. ठीक है, और इसमें आपको एक चीज का और ध्यान रखना है. ठीक है, इसमें आपको एक फैक्टर आपको और ध्यान रखना है विच कैन बी आस्क्ड ऑफ यू इन अ सिंपल एमसीक्यू फॉर्म और सिंपल कंसेप्चुअल फॉर्म, एंड दैट इज दैट द capacitance of an insulated conductor is increased considerably by bringing near it an uncharged conductor connected to earth. This is a very important point. Always remember, this is a very important point because this question can be asked of you in a simple conceptual form या assertion and reason की form में आपसे पूछा जा सकता है. And remember this thing, हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे? The capacitance of an insulated conductor. The capacitance of an insulated conductor. Words बहुत important है. आपके पास insulated conductor होना चाहिए. Is increased. क्या करती है वो? Is increased by bringing near it an uncharged. अगर मैं उसके पास एक uncharged conductor को लेके आऊं connected to earth, तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑफ यू कि which of the following statements are true. तो आपको ये बोलेगा कि the capacitance of an insulated conductor is increased by bringing it close to an uncharged conductor which is connected to earth. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. तो दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड यू इन दिस फॉर्म आल्सो. ओके, सो लेट्स जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ऐसा होता क्यों है. हम इसके ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे. वी विल बी अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग विद अ बेसिक एक्सपेरिमेंट. हम उसके बारे में कुछ लिखेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं. दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ दिस थिंग वर्क्स. ओके, सो लेट्स जस्ट से we have been given a conductor. Let's just say this is the conductor which has been given to us, and this is an insulated conductor. ठीक है, and a positive charge has been given to this conductor. Let's just say this is a conductor A and a positive charge has been given to this conductor, and a positive charge has been given to this conductor. Okay, इस बात क्लियर हुई. And what we did, हमने क्या किया? What we did, we bring another uncharged conductor B close to it. हमने क्या किया? एक चार्ज कंडक्टर A लिया which is an insulated conductor, और हमने क्या किया? एक B कंडक्टर लिया जिसको हमने इसके क्लोज लेके आए. And the moment we bring this conductor B which is an uncharged conductor closer to point A, to charge conductor B, तो होगा क्या? Due to induction, negative charge will be introduced over this surface and positive charge will be introduced over this surface. Clear होगी बात? Now, due to the introduction, now remember my words. Now, please make sure आप इसको बहुत carefully सुने. Due to the introduction of negative charge, on the conductor B, due to induction from conductor A, the क्या होगा उसकी वजह से? The potential of A will get reduced. इसकी वजह से क्या होगा? तो जो आपके कंडक्टर ए था जिसके ऊपर पहले लेट जैसे पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू जितनी आप मैक्सिमम सैचुरेट कर सकते आपने उतनी की थी, एंड आफ्टर आपने क्या किया? बी को उसके पास लेके आया, तो बी पे क्या हुआ? आपने इंडक्शन के थ्रू नेगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस किया. नेगेटिव चार्ज जो इंट्रोड्यूस हुआ कंडक्टर बी पे, उसकी वजह से पोटेंशियल ऑफ ए गेट्स रिड्यूस्ड, एंड एज अ रिजल्ट कंडक्टर ए कैन होल्ड ग्रेटर चार्ज. अब कंडक्टर ए क्या है? ज्यादा चार्ज को स्टोर कर पा रहा है. वो क्या कर रहा है? ज्यादा चार्ज को स्टोर कर पा रहा है. एंड इन द नेक्स्ट केस व्हाट वी डिड, हमने क्या किया? दिस पॉजिटिव चार्ज
इसको हमने अर्थिंग कर दी एंड द पॉजिटिव चार्ज को हमने यहाँ से हटा दिया एंड द मोमेंट वी रिमूव द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम प्लेट बी due to the negative charge which will now get distributed over the surface, which उसकी वजह से होगा potential of A वो further reduce हो जाएगा and the conductor A can store greater amount of charge। और हमने यही कहा कि अगर ये इस वेक्टर से हमें पता लगता है कि अगर हम किसी अनचार्ज कंडक्टर को closer to a conductor लेके आए then the capacity of a conductor to hold charge will increase। और हमने वही चीज इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझी। लेट मी जस्ट रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट वंस अगेन। व्हाट वी डिड, हमने क्या किया, हमने एक कंडक्टर लिया। व्हाट वी डिड, वी टुक एन इंसुलेटेड कंडक्टर एंड वी गेव इट अ कंडक्टर positive charge and gave this conductor positive charge to its maximum value। By giving charge to its maximum value we mean that we saturated this conductor with a positive charge। हमने इसको positive charge दे दिया और positive charge की जितनी maximum value को ये store कर सकता है उतनी value हमने इसको दे दी। ठीक है, अब हमने क्या किया, we brought a conductor B closer to this conductor A and as a result of induction negative charge will be introduced over the conductor B on the side that is facing the conductor A and a positive charge will be introduced on the conductor B on the side facing away from the conductor A। अब होगा क्या, due to the introduction of this negative charge the potential of the conductor A will get reduced because of the nullifying effect। ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट जिस कंडक्टर के पास को हम जिसको हम सैचुरेट कर चुके थे, द कंडक्टर विच वाज ऑलरेडी सैचुरेटेड, इट विल नाउ बी एबल टू होल्ड अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है, अब हुआ क्या, अब हमने क्या किया, व्हाट वी डिड नाउ, वी अर्थ द व्हाट वी डिड, वी रिमूव्ड द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम कंडक्टर बी थ्रू अर्थिंग के थ्रू हमने पॉजिटिव चार्ज को रिमूव कर दिया। नाउ द इंटेंसिटी ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन बी विल इंक्रीज। अब इंटेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज अगर बी के ऊपर इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स दैट द intensity of the positive charge over the conductor A will be reduced। इसका मतलब वो और ज्यादा चार्ज को स्टोर कर पा रहा है and this is what we have written that the capacity of the insulated conductor goes on increasing as we bring it close towards uncharged conductor which is earth। ये बात आपकी सही होगी, ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, now let's just move to the parallel plate capacitor। let's just move to the parallel plate capacitor। ठीक है, so before we start with this thing, जब हमने let's just discuss something which we have already discussed in the previous slide। हमने डिस्कस किया था the moment we started this topic, मैंने आपको कहा था कि capacitance is one of the most misunderstood topic होता है, सबसे ज्यादा misunderstood topic होता है, because पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि C is equal to Q by V होता है and C is independent of Q by V despite of the fact that C is equal to Q by V, वो हमने समझा था। और एक बात को और समझना, when we talk about the capacitors, the most of the student think that the capacitor is nothing but a parallel plate capacitor। कि parallel plate capacitor ही capacitor होता है, उसके अलावा कोई capacitor नहीं होता। Remember, there are also other types of capacitors like spherical capacitors, cylindrical capacitor, बहुत तरह के capacitors होते हैं। This is the reason why I am saying that this is one of the most misunderstood topic because लोगों के दिमाग में capacitor अगर हम बोल दें, they always think about the parallel plate capacitor। Okay, so वो चीजें अलग होगी, वो हमने डिस्कस कर लिया। बट नाउ व्हेन वी आर मूविंग फॉरवर्ड, हम एक कैपेसिटर्स का स्पेसिफिक केस डिस्कस कर रहे हैं व्हिच इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, सो व्हेन वी डिस्कस अबाउट द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वी फाइंड दैट द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी, where a is the area and d is the distance between the plates of the capacitor। ठीक है, अगेन रिमेंबर वन मोर थिंग, हम आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि हमने पीछे पढ़ा था कि द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज डिपेंडेंट ऑन किसके ऊपर, ऑन द साइज एंड शेप। दैट मींस द डायमेंशंस ऑफ द कैपेसिटर जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ओके, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज एंड पोटेंशियल। और वही चीज आपको यहाँ दिख रही है, तो द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डिपेंडेंट ऑन द डायमेंशंस ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर वन। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपको यहां पे समझना पड़ेगा that the net charge, always remember this thing, that the net charge on capacitor plates is equal to 0 but electric field between plates of capacitor is not equal to 0, and this is a very important point, remember this thing,
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दिस कैन बी आस्क्ड इन द सेशन एंड रीजन. दिस कैन बी आस्क्ड इन अ सिंपल कंसेप्चुअल फॉर्म और सिंपल ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है. अब आपसे एग्जांपल ये देगा, इफ द नेट चार्ज ऑन अ कैपेसिटर इज इक्वल टू 0 देन इट मींस दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड विल आल्सो बी 0. ये स्टेटमेंट गलत है. नेट चार्ज ऑन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और एनी प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज ऑलवेज 0 बिकॉज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कैंसिल ईच अदर आउट. दैट द नेट चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज ऑलवेज इक्वल टू 0 बट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेवर इक्वल टू 0. ठीक है, ये बात क्लियर होगी. लेट्स जस्ट मूव टू थर्ड पॉइंट. हम इसके थर्ड पॉइंट को समझते हैं. ठीक है, समझिए. इफ दीज आर द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग. इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से बनाता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे. लेट्स जस्ट से दीज आर द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ठीक है, and since electric field lines will be across this direction, if this is the positive plate and this is the negative plate, and this is the way the electric field lines will get rearranged. Okay, but hota kya hai, when we look at the electric field lines at this surface, at the edges of this parallel plate capacitor, we find that at the edges the electric field lines are like this. Electric field lines are like this. This phenomenon, this shape of the electric field lines at the edges is due to a phenomenon which is called as edge effect, which is known as edge effect or fringing. ठीक है, अब आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द वे विद विच वी कैन रिड्यूस द एज इफेक्ट और फ्रिंजिंग इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो वो करने के लिए, इन ऑर्डर फॉर अस टू रिड्यूस द edge effect or fringing between a parallel plate capacitor, तो हम क्या कर सकते हैं, what we're gonna do is we're gonna reduce the distance between the plates, the distance between the plates. ठीक है, आई होप ये बात क्लियर होगी आपके लिए कि अगर आप रेजिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स को अगर आप रिड्यूस कर देते हो, द मोमेंट यू रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, द एज इफेक्ट और द फ्रिंजिंग इज रिड्यूस्ड. ठीक है, further let's just move to the point number 4. The point number 4 says that, let's just say these are the parallel plate capacitor. ठीक है, this is we have a parallel plate capacitor and it is separated or it is kept in a medium with dielectric constant K. That this medium has a dielectric constant K. If this is the case, then the capacitance C of the medium will be equal to Kc naught. इस चीज को आप ध्यान रखना कि डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट से वो वैल्यू सी, ओरिजिनल वैल्यू जो होती है के नॉट से मल्टीप्लाई हो जाती है. ठीक है, फर्दर द पॉइंट नंबर 5, एंड रिमेंबर दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज योर PYQ. दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन AIPMT. ठीक है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द plates of capacitor is equal to EQ, which is equal to sigma over epsilon naught of Q, which is equivalent to Q square epsilon naught A. इस चीज का आपको ध्यान रखना है. दिस इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ठीक है, फर्दर यहां पे हमने एक टर्म यूज की थी. देखिए, हमने ये चीज को यहां पे डिराइव किया था. ठीक है, इस चीज को हमने यहां डिराइव किया था, k की वैल्यू को डिराइव किया था, k इज डायरेक्ट कांस्टेंट. सो फ्रॉम हियर वी फाइंड दैट, यही से आपको पता होना चाहिए, फ्रॉम हियर वी फाइंड दैट k इज इक्वल टू cm ओवर c नॉट. ठीक है, एंड हियर cm क्या है, कैपेसिटेंस with medium, and this is capacitance in air or vacuum, capacitance in air or vacuum. And from the previous lecture we know that K is equal to epsilon r. Epsilon r is relative permittivity, तो ये चीज भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है. This can be used in your numerical problem, so this is very crucial. Numerical problems. Okay, so this is very crucial result, so make sure you remember this thing and make sure to write this result in your formula notebook. ठीक है, next we have is grouping of capacitors. ठीक है, तो हम इसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे. वी आर नॉट गोना सॉल्व एनी काइंड्स ऑफ डेरिवेशन विद दिस थिंग. आपको बस यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है. इन ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स वी हैव टू काइंड्स ऑफ ग्रुपिंग, दैट इज अ सीरीज ग्रुपिंग
and when we have is a parallel grouping. And when we have a series grouping, then the series capacitance is given by summation I is equal to 1 to I is equal to n over half of Ci. And in parallel grouping आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि Cp is equal to summation I is equal to 1 to I is equal to n of Ci. ठीक है, मतलब आप उसमें सिंपल एडिशन करते हो, यानी कि अगर लेट्स जस्ट से इफ यू टेक एन एग्जांपल, अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, if we have two capacitors in series, let's just say we have two capacitors in series, then the value of 1 by Cs will be equal to 1 by C1 plus 1 by C2, C1 and C2. And similarly, if we have two capacitors in parallel, in that case Cp will be equal to C1 plus C2. I hope अब आपको ये रिजल्ट समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। फाइनली लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन मोर टॉपिक। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पे आप इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को समझ लीजिएगा। अगर आप सीरीज में मूव कर रहे हो तो द चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर्स विल बी सेम, ठीक है, ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। वी आर मूविंग इन सीरीज कॉम्बिनेशन, द चार्जेस अक्रॉस द कैपेसिटर इज सेम, चार्जेस अक्रॉस कैपेसिटर्स इज सेम, ठीक है, ये बात होगी। एंड व्हेन वी आर इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, रिमेंबर दिस थिंग that the potential across the capacitors is same, that the potential across the capacitors is same। अब आप हमसे पूछेंगे कि ये चीजें आपके लिए जानना क्यों जरूरी है, ये चीजें आपके लिए जानना क्यों जरूरी है। दिस you should always remember these things because these things will help you to calculate the values of charge and potential in different combinations। आपसे क्वेश्चन में वो पूछ सकता है by giving a series combination he can ask you what is the value of charge Q in capacitor Q1 and in capacitor C1 and C2। For example, let's just say if this is the arrangement which has been given to you and we have C1, C2 and C3 as three capacitors, the question can be asked of you is what is the relationship between the charges Q1, Q2 and Q3। So अब आपको ये पता है since this is a series combination, in that case Q1 will be equal to Q2 will be equal to Q3 will be equal to Q। तब आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है एंड यू शुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चंस, और ये आप तभी कर पाओगे इफ यू नो दिस पॉइंट्स, ठीक है। और आपसे यही चीज डिफरेंट वे में भी पूछी जा सकती है इफ दिस इज योर पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, एंड लेट्स जस्ट से दिस इज अटैच्ड टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V, if this is C1 and this is C2, वो आपको बोल सकता है find the values of Q1 and Q2, आपको वो बोलेगा find the values of Q1 and Q2। तो आप वो वैल्यूज तभी निकाल पाओगे if you are having this knowledge that the potential across C1 and C2 will be same, so only then you will be able to find the values of Q1 and Q2। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। This is why these points were important for you, ठीक है ना। So let's just move to the next point, that is the energy stored inside a capacitor, energy stored inside a capacitor। So देखिए अगेन मैं इसके डेरिवेशंस पे नहीं जा रहे हैं बिकॉज डेरिवेशन ऑफ दिस टॉपिक आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। हम क्या करेंगे, हमसे डायरेक्टली इसके फॉर्मूलाज को याद करेंगे। सो लेट जस्ट राइट डाउन दिस फॉर्मूलाज फॉर एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर्स। सो फर्स्ट फॉर्मूला इज U is equal to half Q square over C। Second formula is U is equal to half CV square and third formula is half Q into V। इन तीनों फॉर्मूलाज को याद रखिएगा बिकॉज these are the variations of the energy stored inside the capacitor, ठीक है। फर्दर वन मोर थिंग, लेट्स जस्ट से, और यही जो एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर होती है, रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज इक्वल टू द एरिया अंडर वी क्यू ग्राफ। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। area under VQ graph gives you the energy stored inside the capacitor, okay। So before we move forward to the next topic, ठीक है, before we move to the next topic which is this energy stored in a series combination of capacitors and all that, let's just write down something some of the very important points regarding the energy stored inside the capacitors, okay। Let's just write down some of the important points। देखिए before we move forward, let me just repeat myself, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, let's just write down, हम कुछ points को लिखेंगे which are very crucial in regards to the energy stored inside the capacitor। देखिए तो पहला point जो आपको समझना पड़ेगा वो क्या है कि the potential energy stored inside the capacitor, that the energy is stored in the form of potential energy। ये बात तो चलो क्लियर है, इधर कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है लिखते हैं। the point is the potential energy
stored inside the conductor. इसी में आपको पता लग रहा है कि एनर्जी स्टोर कैसी है, पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट. क्या है वो? इंडिपेंडेंट है. किसके इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट ऑफ द मैनर in which charge configuration of the capacitor is built up. Configuration of the capacitor is built up. क्या मतलब इस बात का? जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इनसाइड द कंडक्टर जो होती है वो क्या होती है? वो इंडिपेंडेंट होती है इस बात के कि उस चार्ज कंडक्टर ने अपने चार्जेस को किस तरह से अटेन किया, हाउ द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द कैपेसिटर्स टुक प्लेस. ओके, लेट्स जस्ट मूव टू नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट जो आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है वो ये है, पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द कैपेसिटर is stored in electric field. आपको समझना पड़ेगा जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स. मतलब पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में, उसके बीच में स्टोर हो जाती है. ठीक है. थर्ड पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑब्टेन्ड at the, remember this thing, at the loss of chemical energy. Chemical energy stored in battery और सेल. ये सब पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को ध्यान रखिएगा. फाइनली this is a very important point. Okay, this is the point which I'm going to write is very important point right now. This point is energy spent by battery in charging capacitor is equal to QV. कितनी एनर्जी को करता है? QV. Whereas the energy stored is equal to half QV. मतलब चार्ज करने में एनर्जी तो QV यूज कर रहा है, बट एनर्जी स्टोर्ड किस में कर रहा है? कितनी एनर्जी स्टोर कर रहा है? हाफ QV. बाकी की एनर्जी को जो होती है हीट लॉस में बाहर चली जाती है. ठीक है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है. फर्दर रिमेंबर वन थिंग, इन सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको इस चीज का ध्यान रखना है. इन सीरीज कॉम्बिनेशन टोटल एनर्जी, इफ टोटल एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड एज U is equal to U1 plus U2 plus U3 plus and so on. And in parallel combination, you must remember this thing that UP is also equal to U1 plus U2 plus U3 plus UN and so on. That means that the energy stored is equal to the energy, total energy is equal to the sum of the individual energies. ये बात का आपको ध्यान रखना है. ठीक है. Now let's just move to the next topic. Next topic जो आपके पास इस समय है वो क्या है आपके पास? Energy density of a parallel plate capacitor. Energy density of a parallel plate capacitor. ठीक है ना. अब इस चीज को याद करने के लिए, इन ऑर्डर टू रिमेंबर दिस थिंग, आई यूज्ड अ ट्रिक. जब मैंने इस चीज को याद किया था, आई यूज्ड अ सिंपल ट्रिक. मुझे इतना पता है, रिमेंबर द ट्रिक. व्हाट इज द ट्रिक? अगर आपको एनर्जी डेंसिटी पेपर में है, इन केस यू फॉरगेट दिस थिंग कि क्या होता है. ठीक है. सो मैंने क्या ट्रिक याद किया था? लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द ट्रिक फर्स्ट. ट्रिक जो मैंने याद किया था, मुझे पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है. एंड दिस इज द काइंड ऑफ रिलेशन जो हमें हमेशा बचपन से याद करते आते हैं, दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम. सो व्हाट आई रिमेंबर्ड, मैंने अपने दिमाग में, सो हाउ आई रिमेंबर दिस थिंग, मैंने अपने दिमाग में क्या सेट कर लिया कि व्हेनेवर द टर्म डेंसिटी विल बी यूज्ड, आई हैव टू डिवाइड दैट क्वांटिटी विद वॉल्यूम V. मतलब जब भी मैं किसी क्वांटिटी को V से डिवाइड कर दूंगा, we will get the density of that equation. Okay, for example, if in this case if we talk about the energy density,
if we talk about the energy density. So let's just say, if we talk about it this case, if the energy density is denoted by small u, this means that I will divide the total energy by volume. तो टोटल एनर्जी कितनी है हमारे पास इन दिस केस, दैट इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर एंड द वॉल्यूम इज इक्वल टू ए डी. अब वॉल्यूम ए डी कैसे आया? वॉल्यूम ए डी आपके पास किस तरह से आया है? इफ दीज आर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, इफ दिस इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स व्हिच वी आर हैविंग, इसको आप कंफ्यूजन ले लेंगे, लेट्स जस्ट नॉट प्लॉट दिस थिंग लाइक दिस. दिस इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स वी आर हैविंग एंड इफ द area of each parallel plate is A and this is the distance d between them, and the volume is equal to A into d. So what we'll be doing is half CV square divided by AD, and this will give us the values of energy density as half epsilon naught capital E whole square. प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा. बट डज द टर्म एनर्जी डेंसिटी मीन्स व्हेन वी एनर्जी डेंसिटी मीन्स दैट व्हेन वी डिवाइड द टोटल एनर्जी बाय वॉल्यूम, दैट्स हाउ वी गेट द energy density of a capacitor. ठीक है. Now let's just move to the next topic, that is common potential. That is common potential. ठीक है. अब हम इसकी बात करते हैं, कॉमन पोटेंशियल की बात करते हैं. ठीक है. So when we are going to start with the common potential, अब आप इसको समझिए. Common potential, you have to remember this thing, okay? Common in your syllabus, in order to find the common potential, आपको circuit को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है. And in order to find the common potential, you have to see if the circuit is in parallel or in series. ठीक है. So when the circuit is in parallel, ठीक है, आपको इस बात का समझना पड़ेगा. If the circuit is in parallel, ठीक है, if that is the case, then the common potential V will be equal to C1 V1 plus C2 V2 over C1 plus C2. And when they are connected in series, then the common potential is given as C1 V1 minus C2 V2 over C1 plus C2. And what does the word common potential means? हमने डिस्कस तो कर लिया, बट हमने कॉमन पोटेंशियल के बारे में क्या जाना? कॉमन पोटेंशियल होता क्या है? कॉमन पोटेंशियल इज नथिंग बट दी potential which the capacitor will have when two capacitors are joined with a wire. ठीक है. When two capacitors are joined with a wire. ठीक है. अब common potential के बारे में ना, remember one thing, common potential is more than these formulas. इससे ज़्यादा है common potential. Common potential is not such an easy concept. अब this will give you another example why I say that the capacitance is the most misunderstood topic. ठीक है. Common potential की बात करते हैं तो maximum बच्चे क्या बात करते हैं? वो इन दो formulas की बात करते हैं. These are the formulas which they talk about and they know nothing and they don't know anything else. उनको इसके अलावा कुछ नहीं पता होता. ठीक है. So we will try to understand, we will try to gain as much knowledge as the common potential जिसको हमें हेल्प करे समझने में. ठीक है. So common potential में हमने ये चीज तो समझ ली कि that common potential is nothing but the potential which the system will attain when two capacitors are joined with the help of a wire. ठीक है. Two capacitors are joined with the help of a wire and we always know that the charges flow from higher potential to a lower potential. वो बातें हमें पता है. We have already discussed all those topics in the previous lectures, so we are not going to go to the details of those topics. But what we going to do right now is हम क्या करेंगे? हम उन points को study करेंगे जो common potential के context में बहुत important है और बहुत कम बच्चों को पता होता है. ठीक है. So the first point which we should always remember that when we talk about the common potential, the charges remain conserved. Charges remain conserved. What does this mean? This means that charges, that means a charge lost by one conductor, one capacitor, we should say, the charge lost by the one capacitor is equal to charge gained by other capacitor. But there's a catch. But ये चीज तो होगा, charges remain conserved. But यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, the thing which is really important is potentials are not conserved. That means potential are not conserved. इसको समझते हैं. What does this mean? This means that potential lost by one conductor
is not equal to potential gained by other capacitor। ठीक है, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है बिकॉज दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन विच गिव यू रैंक। क्योंकि ये बातें हर किसी को नहीं पता होंगी, ये बातें सिर्फ आप ही को पता होंगी अगर आपने चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर दीज 2 पॉइंट्स दैट द चार्जेस आर ऑलवेज कंजर्व्ड इनसाइड द कैपेसिटर एंड that the potential lost by the one capacitor is not equal to the potential gained by the other capacitor। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज पोटेंशियल का जो टर्म होता है हम एनर्जी से मेजर करते हैं, सो द एनर्जी इज लॉस्ट। हमने ये पढ़ा कि देखिए हमने पिछले टॉपिक में क्या पढ़ा कि आप सप्लाई कितनी करते हो, चार्ज करने के लिए आप कितनी एनर्जी यूज करते हो, आप यूज करते हो क्यूवी, बट एनर्जी स्टोर कितनी होती है? हाफ क्यूवी। इसका मतलब पोटेंशियल का जो होता है लॉस होता है एंड द रेस्ट ऑफ द एनर्जी जो होती है उसका लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको आपको ध्यान रखना है। विदाउट दीज पॉइंट्स योर नॉलेज रिगार्डिंग द कैपेसिटर्स इज इनकम्प्लीट। ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द लॉस ऑफ energy on sharing charges। loss of energy on sharing charges। ठीक है, सो अब आपको समझिए क्या मतलब है, क्या मतलब इस बात का कि हमने क्या किया, बट we took two capacitors and we connected them with a wire, and as we know that charges will flow from higher potential to lower potential, and when this happens the charges are conserved। that means the charges lost by the one body will be equal to charges gained by the other body, but the potentials are not conserved। that means that the potential lost by one body is not equal to the potential gained by the other body। ऐसा क्यों होता है? because some amount of energy is lost, and now what we're going to do is we're going to calculate the what is the value of this energy which is lost when we connect two capacitors, and this value comes out to be u1 minus u2 is equal to c1 c2 v1 minus v2 whole square over 2c1 plus c2। ठीक है, remember this thing, and this was asked in one of your previous year questions। ठीक है, in your previous year examination किसी में तो ये पूछा गया था। ठीक है, यहां से आपको एक चीज का पता लगता है। ठीक है, यहां से आपको एक चीज का पता लगता है दैट दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, और अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है दिस इंप्लाइज दैट u1 minus u2 is greater than 0 which implies that u1 is greater than u2। ठीक है, ये चीज आपको समझ गई, और आपको यहां से ये चीजें पता लगेगा देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी, ये चीज भी आपको यहां पे पता लग जाती है। ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, एंड आई ऑलरेडी नो दैट आपको ये चीजें पता होंगी बिकॉज यू हैव स्टडीड अबाउट दिस थिंग्स इन योर क्लास 11th केमिस्ट्री। पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, किस तरह से वो काम करते हैं, ये बेसिक केमिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग है, ये आपको पता होगी। ठीक है, नाउ व्हाट वी आर गोना डू इज वी आर गोना टू मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ठीक है, सो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का मतलब क्या है? डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन मींस दैट व्हेन वी प्लेस अ डाइलेक्ट्रिक इनसाइड अ प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पोलराइजेशन दैट इज बीइंग इंड्यूस्ड, क्योंकि अब उसमें पोलराइजेशन होगी तो आपसे ये पूछेगा व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ पोलराइजेशन, वो आपसे पूछेगा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, आपसे इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी पूछेगा किस तरह से होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किस तरह से होता है वो पूछेगा। ठीक है, सो बिफोर वी स्टार्ट विद दिस टॉपिक डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के डिफरेंट रिजल्ट्स होते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, व्हाट आर द रिजल्ट, डिफरेंट रिजल्ट्स व्हिच कैन बी व्हाइल सॉल्विंग दिस डेरिवेशन। Before we come to that results, let's just try and understand what is the meaning of dielectric polarization। ठीक है, इस चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो इसमें जो बेसिक डिटेल्स हैं कि जो आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें डायरेक्ट पोलराइजेशन किस तरह से इंट्रोड्यूस की जाती है वो सब चीजें आपको पता है। सो व्हाट वी गोना डू इज वी गोना मूव डायरेक्टली टू दिस टॉपिक, ये चीजें किस तरह से काम करती हैं। ठीक है, सो लेट्स जस्ट से अगर आपको वो चीजें नहीं पता होंगी तो प्लीज मेक श्योर आपको जो कमेंट सेक्शन में बताएं, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो एज आई ऑलवेज डू सॉरी, तो वो मैं आपको वहां पे क्लियर कर दूंगा कि कौन सी चीज किस तरह से काम करती है रिगार्डिंग हाउ द डाइलेक्ट्रिक नॉन पोलर conductors get
पोलराइज्ड, वो सब चीजें मैं आपको वहां पे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बट बिफोर वी डू दैट, हम अभी यहाँ पे बात करते हैं डायइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के बारे में, वो चीजें किस तरह से काम करती हैं। लेट्स जस्ट मूव टू देयर, ओके। सो लेट्स जस्ट से दिस इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हिच वी आर हैविंग, ठीक है, एंड दिस इज द डायइलेक्ट्रिक व्हिच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस मीडियम, ठीक है। इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा और अच्छा बना देता हूँ ताकि आपको समझने में और आसानी रहे, ठीक है। देखिए, समझिए इस बात को, बहुत ध्यान से समझिएगा डायइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के बारे में, किस तरह से काम करती है चीजें, ठीक है। सो लेट्स जस्ट से दिस इज योर dielectric medium which has been introduced in between the plates of parallel plate capacitor, okay। अब हमें पता है because this is a dielectric medium, हमें एक बात का और पता है, we are always aware of the relation what is the value of induced polarization, we are always aware of the value of what is the meaning of induced polarization and what is the value of induced polarization, कितना होता है। induced polarization की जो value होती है that is equal to P is equal to alpha epsilon naught E naught, अल्फा एप्सिलॉन नॉट ई नॉट इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड पोलराइजेशन, ये वैल्यू हम सबको पता होती है, ठीक है। सो चलिए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा डायरेक्टेड पोलराइजेशन को समझते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस in this system, okay। So what we did, this is the parallel plate capacitor, इसके बीच में हमने एक डायरेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस किया, एंड वी ऑलवेज नो दैट कि अब ये है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। अब क्या होगा, उसमें किस तरह से अरेंज होंगे, इधर नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, इधर नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। हम इसमें सिर्फ 3 सिस्टम्स को स्टडी करेंगे जिसकी वजह से हमको समझने में आसानी रहे, ठीक है। सो देखिए क्या होता है, ठीक है। हमने क्या किया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स को हमने क्या किया, हमने सबसे पहले क्या किया, इस प्लेट को हमने दिया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे हमने दिया नेगेटिव चार्ज, हमने सबसे पहले यहाँ दिया पॉजिटिव चार्ज और हमने दिया यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। अगर हमने ये सिस्टम पे ये चीजें इंट्रोड्यूस की, द पोलराइजेशन विल बी, दैट मींस दैट दिस प्लेट विल बी हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस प्लेट विल बी हैविंग अ नेगेटिव चार्ज। So this means that the direction of the electric field between the parallel plate capacitors will be along this direction, E naught. But since the dielectric medium has been introduced inside the parallel plate capacitors, पोलराइजेशन will occur. पोलराइजेशन मतलब आपको क्या होता है कि मतलब जब उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं किसी नॉन पोलर मीडियम में या उसमें इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। अगर ये चीजें आपके पास आ गई तो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, उसमें क्या होगा, पोलराइजेशन हो जाती है। पोलराइजेशन होने का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, एंड हम बिल्कुल स्टार्टिंग के कुछ मटेरियल्स को ही कंसीडर कर रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू मेक लॉट्स ऑफ दैम, हम लोग थोड़ी सी चीजों को ही देखेंगे, ठीक है। सो उसकी वजह से क्या होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस विल बी इंट्रोड्यूस्ड। सो लेट्स जस्ट से दिस इज द नेगेटिव चार्ज व्हिच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड हियर, this is the negative charge and this is the positive charge, again this is negative and this is positive, this is negative and this is positive, and the same phenomenon will occur at the surface of this dielectric medium, at the surface of this dielectric medium the same phenomenon will occur. That means that this is how the charges will be arranged on the surface, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी बात, पोलराइजेशन की वजह से चीजें हो रही है, ठीक है। सो here will be having a negative charge and here will be having positive negative positive negative positive, and here will be having positive, sorry, negative positive negative positive and negative positive। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, क्या हुआ, अब होता क्या है, all of these charges which are present inside this, all of these charges which are present inside this medium, these charges get न्यूट्रलाइज्ड बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव को कैंसिल कर देगा, पॉजिटिव नेगेटिव को कैंसिल कर देगा, एंड द ओनली चार्जेस व्हिच आर रिमेनिंग आर दिस चार्जेस, दिस नेगेटिव चार्ज एंड दिस पॉजिटिव चार्ज, यही दो चार्जेस बचेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, एक इंड्यूस्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, इंड्यूस्ड पोलराइजेशन यहाँ पे एग्जिस्ट कर जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, एक रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको क्या करेंगे, देखो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे नेगेटिव हो गया, इसका मतलब यहाँ पे एक और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी विच इज नोन एज ईपी, जिसको हम ईपी से डिनोट कर रहे हैं,
ठीक है, इसका मतलब ये हुआ ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, ई नॉट। अब क्योंकि यहाँ पे सरफेस पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इंट्रोड्यूस हो गए ओवर द सरफेस ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इसकी वजह से क्या होगा, एक और इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी जनरेट करेगी इनसाइड दिस डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जो होगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, विच विल गिव अस द वैल्यू ऑफ रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एज ई नॉट माइनस ईपी, ई नॉट माइनस ईपी। ठीक है, एंड फर्दर वी नो दैट ईपी इज इक्वल टू P over epsilon, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो दिस विल गिव अस द वैल्यू ऑफ E वेक्टर इज इक्वल टू E नॉट माइनस P ओवर एप्सिलॉन। ऑलवेज रिमेंबर दिस रिजल्ट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, हम इस चीज को फिर से एक बार समझ लेते हैं। हमने किया क्या, हमने दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स लिए और हमने से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स को क्या किया, उनके मीडियम में डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रख दिया। ठीक है, सो व्हाट वी डिड नाउ वाज द, देखिए अब हमने क्या किया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस दिए। एज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जनरेटेड in this direction, in this direction. This will be known as the original electric field. But now, as the dielectric medium has been introduced between the plates of parallel plate capacitor, dielectric polarization of this dielectric slab will take place. A polarization will take place. As a result, inside the dipoles will be created. A kind of dipoles will be created with the positive and negative charge. Positive and negative charge, वो चीज होगी. All these charges which are present inside the parallel plate, sorry, inside the dielectric medium, let's just say this is your dielectric medium, जितने भी charges के अंदर present होंगे, they will cancel each other out, but only the charges which will be present on the surface, they will be left. आपके पास यही चार्जेस बचेंगे, यही चार्जेस बचेंगे, जितने भी चार्जेस अंदर होंगे वो खत्म हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचर, बिकॉज दे विल न्यूट्रलाइज ईच अदर, एंड एज अ रिजल्ट इनसाइड द कंडक्टर अनदर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जनरेटेड व्हिच विल बी इक्वल टू ईपी, व्हिच विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द applied electric field. In this case the electric field is here, and in this case the EP is along this direction. In this case this is opposite. Okay, so ये इस तरह से हो जाएगा, and this will give you the, this will give you the value of reduced electric field as E will be equal to E naught vector minus EP vector. यहाँ से आपको ये निकल जाएगा, and we know that EP vector is equal to P over epsilon, and from here we get the value of E vector is equal to E naught vector minus P over epsilon naught. ठीक है, इस रिजल्ट को आपने याद रखना है। ठीक है, ये चीजें आपके पास यहाँ से क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, फर्दर आपको यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इज डिनोटेड बाय सिंबल काय। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इज नोन बाय सिंबल काय। ठीक है, तो उसमें आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि वी नो दैट द पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और P इज इक्वल टू एप्सिलॉन काय ऑफ E। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी इज डिनोटेड बाय सिंबल काय। ठीक है, और अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूशंस करें, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 प्लस काय। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 प्लस काय, और ये वैल्यू कहाँ से आई, जब हम इस वैल्यू को उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वी गेट दिस रिजल्ट, वी गेट दिस रिजल्ट, k इज इक्वल टू 1 प्लस काय। ठीक है, For convenience, for my satisfaction, let me explain this topic one more time. हम इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम इसको सीधा समझेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, let's just say we took this parallel plate capacitor, we gave this a positive charge and we gave this plate a negative charge. हमने एक प्लेट को positive charge दिया and इस प्लेट को negative charge दिया. As a result, an original electric field E naught will be introduced in this direction. उसकी वजह से क्या होगा, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास E नॉट आ गई। लेट्स जस्ट से हमने क्या किया, हमने इस मीडियम के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मीडियम, इसके अंदर हमने क्या किया, एक मीडियम को रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। ठीक है, जब हमने इसके अंदर इस मीडियम को रख दिया तो प्रोसेस ऑफ पोलराइजेशन विल टेक प्लेस। पोलराइजेशन की वजह से क्या होगा, आपके पास स्मॉल डाइपोल्स जो होंगे इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, और उसी वजह से क्या होगा, यहाँ पे भी ऑन द सरफेस दिस विल बी नेगेटिव एंड दिस विल बी पॉजिटिव। ठीक है, दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी पॉजिटिव, एंड अगेन हियर दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी पॉजिटिव। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब जितने भी चार्जेस सरफेस के अंदर प्रेजेंट है और इनसाइड द सरफेस प्रेजेंट है, वो सारे के सारे क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ओनली द चार्जेस जो उसके सरफेस पे प्रेजेंट है, ये चार्ज
ये चार्ज, ये चार्ज, ये चार्ज, ये चार्ज एंड ये चार्ज वही बचे रहेंगे, जिसकी वजह से एक और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जिसको हम ईपी से डिनोट करते हैं। एंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होती है वो ई नॉट माइनस ईपी के बराबर हो जाती है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। यहाँ पे ये याद रखिएगा, E इज योर रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपको यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखना है कि ईपी की वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर होती है, ईपी इज इक्वल टू पी ओवर एप्सिलॉन। ठीक है, एंड वी आर ऑल्सो अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट पी की वैल्यू किसके बराबर होती है, पी इज इक्वल टू epsilon chi of electric field. So when we will substitute all these values, we get the value of K is equal to 1 plus chi. Chi is your susceptibility and K is your dielectric constant. इस चीज का आपको ध्यान रखना है, and this is how you get this results. ठीक है, so now let's just move to the last topic of this chapter, that is capacitors of parallel plate capacitor. That is capacitance of a parallel plate capacitor with conducting slab. याद रखिएगा वर्ड्स को, conducting slab. See, अगर आपके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है एंड अ कंडक्टिंग स्लैब हैज बीन इंट्रोड्यूस इन इट, आपने क्या किया है, कंडक्टिंग स्लैब को उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया है। लेट्स जस्ट दिस इज योर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड अ कंडक्टिंग स्लैब हैज बीन इंट्रोड्यूस इनसाइड दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देन द नेट कैपेसिटेंस इन दिस केस विल बी C is equal to C naught over 1 minus T over D. ठीक है, और आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, मैं आपको लिए फिर से डायग्राम बना देता हूँ। ये डायग्राम बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना, जस्ट वेट अ मिनट, अगेन लेट मी रिपीट माई सेल्फ। इफ वी हैव अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, लेट्स जस्ट से दिस इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, एंड व्हाट वी डिड वाज, हमने क्या किया है, इसके बीच का जो एरिया है वी इंट्रोड्यूस्ड अ कंडक्टिंग स्लैब। What we did, we introduced a conducting slab inside this parallel plate capacitor. So when we introduced this slab inside this conducting plate capacitor, a conducting slab, this is the conducting slab in this parallel plate capacitor. ठीक है, आपको एक चीज का ध्यान रखना है, if this is the case, we know that the electric field inside the parallel plate capacitor will be equal to 0. ठीक है, so when we will solve the results, when we will solve these equations, we get the value of capacitance inside the parallel plate capacitor to be C is equal to C naught over 1 minus T over D. ठीक है, C over, ये आपके पास रिजल्ट निकल के आता है। ठीक है, now remember this distance is your D, this distance is your D, ठीक है, and this thickness T represents the thickness, this from here to here, this is your thickness T, यानी कि यहाँ पे याद रखिएगा D is nothing but the distance between parallel plate capacitors and T is thickness of slab, thickness of slab। इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं पे लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट रिजल्ट। क्या हो कैपेसिटेंस, और यहाँ पे मैं आपको चीज और बता दूं, व्हाट डज C naught रिप्रेजेंट, C naught इज द ओरिजिनल कैपेसिटेंस, ओरिजिनल कैपेसिटेंस व्हेन कंडक्टिंग स्लैब वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड, व्हेन कंडक्टिंग स्लैब वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, इसी केस में हम सेकंड केस को स्टडी करते हैं, दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ अ parallel plate capacitor with dielectric slab, with dielectric slab, capacitance of a parallel plate capacitor with a dielectric slab. Let's just look at that thing. ठीक है, इसको स्टडी करते हैं क्या होता है। So let's just say this is a parallel plate capacitor which has been given to us, and what we did, we introduced a dielectric slab inside this. हमने क्या किया, इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब हमने जब द मोमेंट वी इंट्रोड्यूस डाइलेक्ट्रिक स्लैब इनसाइड दिस, ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे जब कंडक्टिंग स्लैब था तो E इनसाइड कितना था, 0 था, बट जब हम इसमें क्या कर रहे हैं, जब हम इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हमें पता है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 नहीं होगी। ठीक है, इफ this conductor has been given a positive charge and this will be having a negative charge, इसका मतलब क्या है, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड will be low,
ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी along this direction. ठीक है, EP will be along this direction. This implies net electric field will be equal to E naught vector minus EP vector. ये चीज हमें पता है. ठीक है, अगेन लेट्स जस्ट से दिस इज द ओरिजिनल थिकनेस D, ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन द स्लैब्स के बीच में, एंड दिस इज द thickness D of the slab. D is the distance between the plate of parallel plate capacitors, and if this is the case, तो आपके पास जो capacitance निकल के आती है that comes out to be C is equal to epsilon naught A over D minus D 1 minus 1 over K. Sorry. Again let me repeat myself कि अगर आपके पास केस इस तरह से हो where a dielectric slab has been introduced inside the plates of a parallel plate capacitor, in that case the capacitance comes out to be C is equal to epsilon naught A over D minus D of 1 minus 1 over K. ये आपके पास निकल के आती है. ठीक है, क्लियर हो गई इतने से बातें. ठीक है, अब यहाँ पे हम दो चीजों को और अच्छे से पढ़ लेते हैं. ठीक है, वो पहली चीज ये है, इन दिस केस, इन दोनों केसेस में आपको समझना पड़ेगा. नोट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट चार्जेस इंड्यूस्ड ऑन dielectric or conducting slab which were introduced between the plates of parallel plate capacitor is equal to Qi will be equal to minus Q 1 minus 1 over K. क्या मतलब है इस बात का? What does this mean? This means that the nature of the charge induced will be opposite. Negative sign क्या बता रहा है? Nature of the charge will be induced will be positive to the original charges. ठीक है, पहली चीज. सेकेंड चीज आपको यहां पे याद रखना है, when a dielectric slab is introduced between plates of a charged capacitor with battery connected across plates. अगर आपके पास ये चीज होगी तब क्या होगा? Remember one thing, this is very important result because the questions has been asked from this thing. What we are discussing right now is what will happen when a dielectric slab is introduced between the plates of a charged capacitor with battery connected across the plate. मतलब बैटरी को आपने कनेक्टेड रखा है across the plate. उस केस में क्या होगा? देखिए, number one, potential remains constant, V remains constant. क्या मतलब इस बात का? मैंने क्या किया, ये कब डिस्कस कर रहे हैं? when the plates of parallel, let's just say we have plates of parallel plate capacitors and these are connected to potential V. while connecting, वो connected ही है और हमने parallel plate capacitor को introduce कर दिया. हमने sorry इसमें confusion हो जाता है मुझे. ठीक है, ये केस ये है कि if these are the plates of parallel plate capacitor, positive and negative, and these are connected to a potential V. ठीक है, and without disconnecting we introduced a dielectric slab. Without disconnecting we introduce a dielectric slab. If that is the case, the potential क्या होगा? Potential remains constant. ठीक है. Secondly, the capacity C increases. कितनी हो जाएगी capacity? Capacity will be equal to K times of C naught. Third, Q increases. The value of Q will be equal to CV, and C here will be Kc naught. Fourth, E decreases. If E decreases means E will be equal to E naught by K. ठीक है, and finally what will happen? U increases. U increases means that U will be equal to half CV square will be equal to KU naught. ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना है. एंड फाइनली द फाइनल रिजल्ट फ्रॉम दिस चैप्टर, व्हाट विल हैपन? ठीक है, व्हाट विल हैपन व्हेन बैटरी across
capacitor is off and dielectric slab is introduced. समझ पा रहे बात को? अब आपके पास यह है कि तब क्या होगा कि जब हमने क्या किया, रिमेंबर अब ये क्या केस है, दिस इज द केस व्हेन let's just say this is the plates of parallel plate capacitor, this is having charge positive and this is negative, and we are having a battery connected to it, ठीक है. And now what happened is हमने क्या किया, इसको चार्ज किया and we disconnected the battery, and as soon as we disconnected the battery हमने क्या किया, इनके बीच में डायरेक्टर स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है. And when this is the case, when this happens, then what happens? Number one, charge remains constant, Q is equal to Q naught. Secondly, capacity increases, C is equal to Kc naught. Remember, capacity increases in both cases. Third, V decreases, potential decreases, V is equal to Q over C is equal to V naught over K, ठीक है. Fourth, electric field decreases, E is equal to V by D will be equal to V naught over KD. Fifth, energy decreases. Q, because U is equal to Q square over 2C will be equal to U naught by K, ठीक है. I request you to remember all these formulas, okay, because you will find that many questions have been asked from this topic in your previous year's examinations, okay. So you cannot आप इनको छोड़ नहीं सकते, यू कैनॉट लीव दिस थिंग्स, ओके, यू कैनॉट लीव दिस थिंग टू चांस कि यार यहाँ से क्वेश्चन अभी तक नहीं आया तो देयर आर नो चांसेस दैट द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक इन द फ्यूचर. Don't think like that, because the moment you think like that आपको वही क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा. So always remember this thing, that you have to remember all these formulas, you have to understand these concepts, and there's a reason why I have told you that this is the most misunderstood topic. So इसको बहुत ध्यान से करिएगा. I have tried my level best that you are able to understand this topic, आपको उसको समझने में कोई दिक्कत ना हो. But still, if you find that something is missing, if you still find that you are not able to understand this topic, please make sure you comment in the comment section, so that along with your problem, or you can email them to me. I have already mentioned my email in one of the videos, so that's the thing. और मैं उस पे फिर से एक separate video बना के I'll put that video for you, ठीक है. With this thing I request you to स्टडी अच्छे से पढ़िए, कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे. एंड विद ऑन दैट नोट हम आज का टॉपिक खत्म करते हैं. एंड आई होप आप अच्छे से पढ़ेंगे एंड यू आर प्रैक्टिसिंग. एंड देयर इज वन मोर थिंग व्हिच आई एम रिक्वेस्टिंग फ्रॉम यू, व्हिच आई हैव ऑलरेडी रिक्वेस्टेड फ्रॉम यू, एंड आई रियली होप कि आप प्रीवियस जो 11th क्लास है उसको रिवाइज कर रहे होंगे. यू विल बी डूइंग एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस फ्रॉम योर काइनेमेटिक्स, ओके. मैं ये सोच रहा हूँ कि इतना आप कर रहे होंगे, सो आई होप आपको अच्छे से कर रहे होंगे. ऑन दैट नोट लेट्स जस्ट एंड टुडेस टॉपिक. And I hope आपको ये लेक्चर अच्छा लगा. Please make sure to like, share and subscribe. Thank you so much. Good night. Bye bye. Take care and best of luck.